یا اللہ امان میں رکھیو، تیرا ہی آسرا ہے میرے مولا، اور ستیاناش جائے اس گورے کی سائی کا۔ ارے دینوں تو سوکھی پتجھڑ بھی پھینکے تو کانپ جاوے، پر اس گورے کمینے کو مسلمان کی جان سوکھے پتے جتنی بھی کام کی نظر نہیں آ رہی۔ ہائے ہائے، چراغے نیچے نہ پھینکیو بیٹا، کوڑے میں ڈالنا، سوکھے پتے کی جان جائے تو پھولوں کی کھاد تو بنے۔ پتے سوکھے کنویں میں ڈال رہا ہوں۔ شاباش ہے بیٹا، شاباش ہے۔ ککو، اے ککو صاحب جی، آجا بیٹا آجا، چراغے بھائی تھک گیا تیرا، ذرا اس کا ہاتھ تو بٹا دے بیٹا۔ ککو جی، ارے بہت ہو گئی ناراضی بیٹا، ناراض ہو کے جائے گا کدھر کو؟ ارے لاہور میں تو ہو رہا ہے بھلوا۔ آجا بیٹا آجا 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 میری جان آجا۔ اذان سن کے کلمہ ضرور پڑھو گے، اور کلمہ سن کے وہ ٹامی مارے گا ضرور ہے۔ ہاں ہاں بولو بولو نعمت بی بی، ذرا بھیجے نا عبداللہ بھائی کو، بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ عبداللہ سویرے سے تو نظر آیا نہیں عبداللہ، پر ذرا ٹھہر، جا کے دیکھتا ہوں ہسپتال میں۔ ہاں ارے ساولی، ارے شہر میں ہو رہا بلوا، تو ادھر آ گئی سویرے سویرے؟ نہیں رینو دادا، پیٹ کا بلوا کا شہر سے بلوے سے زیادہ ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ پر چھوٹی بیوی ہی نہیں ہے، تو جا۔ کاہے کو جھوٹ بولا، یہیں تو ہے۔ ارے بیٹیاں سسرال سے روز روز نہیں آوے ہیں، جا۔ جھوٹ مت بول رینو دادا، کھا قسم۔ قسم؟ ہاں کاہے کھائے قسم؟ اچھا لے، نہ ادھر نہ ادھر، میں سیدھا روشن بیوی کے گھر چلی، اب تو خوش ہے نا؟ لے راجا نل 30 اے 30 نہ 25، راجا نل کی پھوٹی تقدیر، کل 3 ہیں چچی، 1 2 یہ 3 اور یہ ہوئے پورے 25۔ تو میری تو گھر سے گوٹ نکل کے چوتھے خانے میں جا کے بیٹھ گئی۔ چچی اگر عبداللہ بنیادی کے کپڑے لے کے نہ گیا تو مجھے ڈرے سنگامے میں حسنہ کو لے کے گھر سے نکلنا پڑے۔ اب بنیادی کے نخرے بہت بڑھ گئے، بھلا پوچھو تو کہ حسنہ کے سسرال میں آئی کون سوائے نصیرہ اور اشفاق احمد کی؟ اب یہ چراول بدل بدل کے کسے دکھاتی ہیں؟ ہے نہیں، آپ بہت مبالغہ کرتی ہیں چچی، اس بیچاری کے پاس تو 4-6 جوڑے ہیں، اب کل دھوبی کو آنا تھا نا۔ ہاں ہاں، تو نہیں آیا پھر کیا کرتی بیچاری؟ اب تو خود دھو بھگو لیتی، اب 2 کپڑوں کا دھو نہیں کیا ہے عالم ہمارا؟ یہ کیا کریے، اللہ آپ کو کوڑیاں جمانے کا موقع دے۔ نہیں ہلا کے پھر ہلا تو رہی ہوں۔ ہاں یہ دیکھ یہ کم وقت 3 تو جانی کو آ گئے، اب 3 پڑے یا 4، جلالت کا ٹوکرا تمہیں کو ملے گا۔ 1 2 کھانے کیا گن رہی ہیں، پٹ نہیں سکتی ہماری گوٹ، انگریز مسلمانوں کو پیٹنے کی اپنی سی کر رہا ہے، آپ بھی ہماری گوٹوں کو پیٹنے کی ناکام کوشش کر دیکھیں۔ ہاں عالم ہمارا، آج تو جیسے سارے شہر کو ساتھ سن گیا، سویرے سے کسی تاگے کی بھی آواز نہیں سنائی تھی۔ تو کیسے سنائی دے، اور سواریاں چلیں تو کیسے چلیں، ساری بڑی سڑکیں بند پڑی ہیں۔ آپ کو کچھ ہوش بھی ہے؟ گورا فوج سارے شہر میں دندناتی پھر رہی ہے۔ مجھے تو اس قدر ڈپٹی صاحب کی فکر ہے، چہل قدمی سے واپس آئے، نہ ناشتہ نہ حقہ، شیروانی ڈالی اور نکل کھڑے ہوئے۔ محسن میاں تو کمرے میں بھی نہیں ہے بیگم صاحبہ۔ ابھی ہوئی ہے کیا؟ بھلا کہاں جائیں گے محسن میاں؟ بھائی اسکول کالج سب بند پڑے ہیں۔ دیکھو غسل خانے میں ہوں گے۔ نہیں وہاں بھی نہیں ہے۔ بھائی اچھا دستور ہے، سارے شہر میں بلوا اور ہمارے گھر کے سارے مرد غائب۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ چچی، کسی نہ کسی کو تو گھر میں ہونا چاہیے۔ محسن تو خیر اللہ رکھے روز کا باہر جانے والا، میں تو ڈپٹی صاحب پہ حیران ہو رہی ہوں۔ نعمت تو جا کے دیکھ تو صحیح کہ عبداللہ روشن بیوی کے یہاں سے آیا ہے یا نہیں۔ جی اچھا۔ بنیادی کے کپڑے نہ پہنچے تو کہیں حسنہ کو لے کر وہ سنگامے میں نکل نہ کھڑی ہوں۔ سواری کہاں رک گئی؟ 3 آئے تھے پچھلی دفعہ، چال چلیے نا۔ چل رہی ہیں، چال سوچ لوں، 1 2 3۔ پیٹ زمن کی پیٹ کم وقت بہت دیر میں پٹی ہے۔ یہ میری پیلی کوٹ آپ نے پیٹی کیسے؟ راجا نل کے راج کی قسم، یہاں سے میں نے گھر میں سے اٹھا کے چوتھے خانے میں خود بٹھائی تھی۔
भाई जो घर बैठते ही ना चाहे, तुम उसे तीसरे घर बिठाओ या चौथे घर, वो तो भागेगी भी और हमारे हाथों पिटेगी भी। मैं मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं। मैं फेंक भी चुको कौड़ियाँ। ना ना, भाई जबरदस्ती है। तो जबरदस्ती तो आपकी है। क्या गोद को पांव लग गए? अच्छी खासी महफूज बैठी थी चौथे घर में। नहीं, मगर वहां से वो आपके हाथों पिटने के लिए आके तीसरे घर में बैठ गई। हम नहीं खेलते आपके साथ, आप बहुत बेईमानी करती हैं। तुम्हारी हमारी चाहत की कसम आला मारा, अपने पैरों चलकर नहीं आई है। भाई तुम्हारे हाथ बिठा गए हैं। भाई ये क्या है दुल्हन, आप ये लोतरी मत करो। अच्छा जाओ मत खेलो, हम खुद तुम्हारी चाल अपने हाथों से चलेंगे भी और तुम्हें गिलास का टोकरा भी देंगे। आप तो मीठा ठग चची, बेईमानी भी करती हैं और अपने रिश्ते का नाजायज फायदा भी उठाती हैं। अच्छा ये से हम भी आपकी सुखी हरामखोर को नहीं छोड़ेंगे। जहाँ दिल चाहेगा रखेंगे। और इसे किधर गई मेरी पीढ़ी? हाँ, इसे हमने ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा? इतनी बेईमानी पर भी 4 गलादत के टोकरे उठाए हैं आपने। अच्छा चलो, हमने माफ किया। भाई हम बड़े हैं तो बात भी बड़ी करेंगे। बस देख लिया आपका बड़ापन, नजर बची और बिसात लूटी। चलिए खाली खेल, मेरा तो दिल वैसे ही हौले जा रहा है। अब्दुल्ला अल्लाह जाने कहाँ जाके बैठा। हम जानते हैं तुम्हारी हौल का सबब। आप कुछ नहीं जानते। भाई अली रजा को घर दामाद रख लो, तुम हुस्ना के बगैर रह नहीं सकती। मैंने तो अपने बड़े बेटे और बहू को भी अलहदा कर दिया। ये बेटी को घर दामादी किस खुशी में इनायत करूं? एक बात कहूँ आला मारा, बुरा तो नहीं मानोगी? कहिए। भाई जब तक खैर से मोहसिन मियाँ की शादी नहीं हो जाती, अहसन को और उनकी दुल्हन को तुम्हारे साथ रहना चाहिए। अरे ये सारी वहशत जो तुम पर सवार है, ये सब तन्हाई की है। आप हमेशा बेमौका बात करती हैं चची। खुदा के बाद से शौकत दुल्हन के सामने ऐसी बातें मत कीजिएगा। आप यही बातें सुनकर उस दिन उसका इतना समूह निकल आया था। अजीज, अब्दुल्ला कहाँ है? ये सारी चीजें बड़ी बेगम साहब के घर पहुँचानी है। अब्दुल्ला के हाथ मैंने सारा सामान भिजवा दिया। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, बड़ी बेगम साहबा सामान मंगवाती किससे? अच्छा ठीक है जी बहुत अच्छा। अम्मी अम्मी, मैं बाहर खेलने जाऊं? नहीं, तुम बैठ कर पढ़ो। अम्मी शाहिद भाई महमूद भाई भी बाहर खेल रहे हैं। देखो नुज़हत, उन्हें खेलने दो, तुम्हारे इम्तिहान है, तुम बैठ कर पढ़ो। शौकत भाभी, अरे शौकत भाभी। जी रोशन भाभी। चची जान आपसे बहुत खफा है शौकत भाभी। मुझे पता है। वो समझ रही हैं कि आप एहसन भाई को लेकर अलग हुई हैं। रोशन भाभी, मुझे अगर आपके अकेलेपन का ख्याल ना होता तो मैं उमानी अम्मा के साथ ही रहती। देखिए शौकत भाभी, हमसे अकेले नहीं रहा जाएगा। आप ना हुई तो हमसे ये घर भी नहीं चलेगा। आबिद भाई आए थे, चले गए? नहीं, यही कहीं है। वैसे अपना अपना नसीब है। हमें आप जैसी नम मिली, देख लीजिए ऐश कर रहे। मैंने सुना है कि मेरी शादी को 10 बरस हो चुके हैं और एक अदद बीवी भी घर में मौजूद। क्या चाहिए आपको आबिद भाई? बीवी सुबह से मुझे कुछ 10 चीजें चाहिए थी। पहले कलम गायब हो गया, अब मुझे कचहरी जाना है और टाई के लिए मुझे अलमारी की चाबियां चाहिए। ये पड़ी हैं अलमारी की चाबियां। शहर में फसादात हो रहे हैं, लोग बेहद परेशान हैं और आप मेहंदी लगाए रानी बन बैठी। आप तो हमारी मेहंदी और चूड़ियों के दुश्मन हो गए, और नहीं तो क्या। माशाल्लाह, नसीब हो तो आपके। भला मैं कौन होता हूँ इनके सिंगार का दुश्मन होने वाला। सिर्फ इत्तलान ये अर्ज करना था कि शहर में लोग बेहद परेशान हैं। अल्लाह उनकी परेशानियां दूर करे, हम क्या करें। अल्लाह हमारी खुशियां कायम रखे, हमसे मुंह बसूर के नहीं बैठा जाता है। ये पड़ी हैं चाबियां, उठा लीजिए। थैंक यू। अल्लाह, शौकत भाभी, हमसे फिर बेतुकी बात हो गई आज। अल्लाह खफा तो नहीं होगा? खुदा तुम्हें हमेशा हंसता रखे। क्या करें शौकत भाभी, हमारा अजीब मिजाज है। दूसरों की परेशानियों का तो हमें एहसास ही नहीं होता है। दुल्हन बीबी, ओ दुल्हन बीबी, सावली। अरे सावली, आजा। सलाम। सलाम बीबी, सलाम कर। रोशन भाभी, अल्लाह ने एक आप ही को बेफिक्रा नहीं बनाया।
दूसरी बेफिक्री तो ये है, अरे इस हंगामे में कहाँ निकल पड़ी तू? लो तुम भी वो कहो जो हमको दीनू दादा बोले। अभी भी काका छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पेट तो भरना है ना। वो कमीना तो बाहर जाके जुआ में हार आए पैसे। अरे फिरंगी गोली मार देंगे तुझे। आई बीबी जान छूटेगी। आई बीबी मूढ़ी खरीदो चाहे ना खरीदो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमका 2 रुपया दो, हम आटा खरीद के लेके जाओ। आज जिस दिन से हुस्ना बीबी घर गई, बस उस दिन से सवली का खत्म। हुस्ना की ससुराल चली जाना। आई बीबी मैं तो 100 बार आऊँ 100 बार जाऊँ, मगर उनके जो नंदोई है ना, आई उसकी नजर एकदम खराब। उनकी नन तो अच्छी है ना, उन्हीं के पास चली जाया कर। अच्छा चूड़ियाँ। हाँ बीबी देखो चूड़ी। आइए देखो बीबी, अब गिराऊंगी। अब्बा मैं हुस्ना की नंदी नहीं हूँ, मैं उसकी चचाजाद बहन भी हूँ। अरे कुछ तो रहम करो, खुदा से डरो, खुदा से डरो, नहीं तो तुम। मैं कहता हूँ निकल जा यहाँ से, दबान हो जा। तू हुस्ना की बहन बनकर इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती नसीरा। चल, गई नहीं, दफा हो जा। कहाँ जाऊँ तुम ही बताओ, मैं कहाँ जाके मर जाऊँ? न मेरी माँ न मेरा बाप, मेरा बस एक अकेला भाई है। तुम मुझे क्यों उसके सामने शर्मिंदा करते? एक अकेला है भाई, बड़ा प्यारा है भाई, इतना मान है भाई का तो इस खंडर जैसे घर को बहन के नाम नहीं कर सकता। 15,656 रुपए 12 आने कलदार निकलते हैं मेरे। क्या कर्जा निकलता था तेरे बाप का मुझ पर, जो मैंने इतने पैसे तेरे भाई की शादी में खर्च कर दिए? मेरा भाई तुम्हारी एक एक पाई अदा कर देगा। तूने मुझे पहचाना नहीं नसीरा। हिसाब किताब की बात हो तो मैं अशफाक अहमद वल सुल्तान अहमद अपनी हमशीरा बीबी जान और सगे भाई को बख्शने वाला नहीं। याद रहेगा ना, हुस्ना का जेवर इस घर की दीवारों से बाहर नहीं जाएगा। तो मेरी मानो तो लानत भेजो उस जेवर पे। अली तुम्हें ये मकान दे देगा। देखो ना, आखिर हम इस मकान में रह रहे हैं। ये मकान 15,000 से बहुत ज्यादा का है। ज्यादा का है, बहुत ज्यादा का है। फिर डंडी मार रही है, फिर बेईमानी कर रही है। मैं तुझे समझा रहा हूं कि हिसाब किताब की बात हो तो मैं अशफाक अहमद वल सुल्तान अहमद अपनी हमशीरा बीबी जान और सगे भाई को बख्शने वाला नहीं। कौन कौन सा कर्ज चुकाएगी इस मकान से? क्या जहेज लाई थी तू? क्या घोड़ा जोड़ा मिला था तुझे तेरे घर से? सल्तनत बरतानिया की अदालत का पेशकार हूं। मेरी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता। अफसोस, अरे मेरी माँ को अपनी बहन की बेटी ब्याने का मरज लाक ना होता तो आज किसी बड़ी रियासत का दामाद होता। वो तो मेरा एहसान है कि तू इस घर में रह रही है और मेरी बीवी कहलाती है। हुस्ना 100 बार जाए मगर उसका जेवर इस घर से बाहर नहीं जाएगा। आ गया समझ में, या समझाऊं किसी और तरीके से? तुमने मुझे सारे कुनबे का बैरी बना दिया, सारा खानदान का दुश्मन बना दिया तुमने मुझको। कोस रही है, गारत हो जाए अशफाक अहमद। अरे जा जाके लाहौर में देख, गारत वो हो रही है कि ताजे बरतानिया के वफादार नहीं है। मैं वफादार नमकखार, खुदा खिजर हयात की वजारत में सलामत रखे इसी शहर में मजिस्ट्रेट बनूंगा और फिर समझूंगा तेरे सारे कुनबे को बड़े शरीफों के फन्नेखा बने फिरते हुए। हुस्ना 1000 बार जाए घर से बाहर मगर उसका जेवर अशफाक अहमद के कलमदान से बाहर नहीं जाएगा। अजीब झल्ला आदमी है तू। इतनी देर से कह रहा हूँ कि तांगा उधर से निकाल मगर तेरी समझ में नहीं आता। पीछे जनानी सवारियां बैठी है, तेरी समझ में नहीं आता। पागल हो गया तू?
उधर से निकाल, दूसरे रास्ते से तांगा। चल ना, रास्ता खराब है। अबे छोड़, तू उधर से निकाल यार। अरे अब्दुल्ला जी, दीनू भाई, हाँ, बलबा बहुत बढ़ गया है। अच्छा, काली रोड पर बड़ी मारा मारी हो रही है। अरे हाँ अब्दुल्ला जी, वो मामदीन हलवाई भी रोता गाता बड़े सरकार के पास सिफारिश कराने आया था। उसके लमडे को पुलिस धर के ले गई। कसूर, अमृतसर, गुरदासपुर, डेरे तक मुसलमानों का खून बह रहा है। फिर मुसलमानों ने धत तेरेगी करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान बने बिना बात नहीं बनेगी दीनू भाई। अब पहले तो साहब लोग जो बात करे थे ना, तो अपने कुछ पल्ले नहीं पड़े था, पर अब तो साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान बनना चाहिए। देखो ना, मुसलमानों की दुश्मनी में तो सारी जात एक हो जाती हैं, सारी की सारी। अब्दुल्ला जी, तू आ किधर से रहा है? बड़े सरकार पता नहीं किधर चले गए सवेरे से। भाई खबर नहीं मुझे तो, मैं तो एहसन मियां की कोठी कर गया था। अच्छा हाँ, अच्छा भाई, बड़ी परेशानी, बड़ी परेशानी। अच्छा तू जा जा, अल्लाह मालिक है, जा तू। मेरा तो दम लौटा जाता है। अल्लाह जाने डिप्टी साहब कहाँ चले गए। नसीरा के घर। तुम्हारी जिद्दम जिद्दा में अली को बेटी दे तो दी, मगर मियां मुमताज अहमद के दिल में हौल का पंखा लगा है। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा ही थोड़ा। आखिर को अली तुम्हारी देवरानी नजमा का बेटा है। आया तो एक जरा सी अंग्रेजी की डिग्री क्या मिल गई अली को कि तुमने आला मारा माजी फरामोश करके हुस्ना फूल जैसी बेटी ब्याह दी दुश्मनों में। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं चाची। डिप्टी साहब हर वक्त अली की लियाकत के गुण गाते हैं। हाँ नहीं तो, अरे सारे शहर में खलबली। भाई जाना ही था तो तुमसे मुझसे कह कर गए होते मियां मुमताज अहमद। अरे बे कहे जाने का मतलब ही यही है कि भतीजी के दर्शन को गए हैं, और वो भतीजी नसीरा, अल्लाह की कसम, हुस्ना के मायों के दिल से जब मुंह फूला है तो मुस्कुरा के नहीं दिया जालिम ने। खैर रोशन के घर का चौथा चाला आ गया। पान दूं? दे दीजिए कट्टर, मेरा तो दिल पहलू से निकला जाता है। खाने का वक्त होने वाला है। ऐसे वक्त में तो डिप्टी साहब कभी घर से निकले ही नहीं बाहर। ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं भाई। ठीक है, अली और मोहसिन बगावत की जुर्म में गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन राय बहादुर साहब ने जमानत पर रिहा करवा चुकी हैं। एहसन भाई, अली ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो तो नेशनलिस्ट है। नेशनलिस्ट होना मुसलमान की वक्ती मसलहत तो होती है रोशन, लेकिन अटल फैसला नहीं हो सकता। कई बार मेरा जी चाहता है कि अंग्रेज की दी हुई नौकरी उठाकर उसका मुंह पर फेंकूं। हाबिब भाई, अभी कुछ दिनों की तो बात है, मोहसिन कांग्रेसी लीडरों के इस्तकबाल को स्टेशन गए थे। बिल्कुल झूठा इल्जाम है। और तो और मोहसिन, जिन्हें सिवाय इसके कोई गम नहीं कि जैसे भी मुमकिन हो विलायत जाकर बैरिस्ट्री की तालीम हासिल करें। भाई आप लोग माने या ना माने, अम्मा को समझाना बहुत मुश्किल है बुनियादी खाना। उन्होंने मुझे मना किया था कि मैं जुम्मे से पहले घर ना आऊं। ना बीबी, पहले मैं घर में घुसी तो चची जान मेरा सर मुड़ देंगी, सीधा बोतान लगा देंगी कि मैं अपने कपड़े बदलने के बहाने से आपको ससुराल से लेके चली आई। ना बीबी, अब बातें मत बनाओ बुआ, चलो अंदर। अच्छा तो इधर से नहीं, इधर से चलेंगे पिछले दरवाजे से। चलो चलो।
دینو بھائی سلام، دینو بھائی جواب دے رہی، سلام نہیں کرے، سلام کر رہی جواب نہیں دے رہے۔ سلام کا جواب تو ہے ہی وعلیکم السلام، اور یہ جو تم کوا سا سر لے کے بڑی معتبر بن کے چھوٹی بیوی کے سنگ سسرال گئی تھی، روز روز کپڑے بدلنے کے واسطے ان کو لے کے یہاں کہاں چلے آتی؟ سلام دینو دادا، جیتی رہو، سکھی رہو چھوٹی بیوی۔ سن لیا آپ نے اپنے دینو دادا کی گفتگو؟ چھوٹی بیوی ہم سمجھائے رہے، دیکھو نا ہم مالی لوگ جب نیا بوٹا زمین میں اتارے ہیں نا تو نئی ماٹی اور جڑوں کے سنجوگ کے بعد سے 4 دن جوڑ جوڑ کے ملا کے رکھنا پڑے ہے جڑوں اور ماٹی کو۔ بیٹیوں سسرال کا معاملہ بھی یہی ہے، یہ ہے کہ روز روز تم کو لے کے یہاں چلی آوے۔ ارے گھاس کھوتے کھوتے چر بھی گئے ہو کیا؟ نہ میں بیوی کو لے کے آئی ہوں، نہ بیوی آپ آئی ہیں، علی میاں نے خود بھیجا ہے۔ مسلم ٹاؤن کے شادی سیرادی دینو دادا آئی سمجھ میں، جانی کو آ گئے نہیں تو۔ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں دینو دادا، مجھے بھی کون سا اچھا لگتا ہے روز روز یہاں آنا۔ دیکھو نا بیوی، پرائی زمین من مار کے پکڑنی پڑے ہے۔ ہاں دینو دادا، اب کے سسرال جاؤں گی نا تو جب تک تم لینے کے لیے نہیں آؤ گے نا، سسرال کی دہلیز سے قدم باہر نہیں نکالوں گی دادا۔ سکھی رہو چھوٹی بیوی۔ اماں ہیں گھر پہ؟ ہاں جی، چل رہی ہے 25 جوڑوں پہ۔ اب آ بھی جاؤ دلہن، ہال کھانے سے وقت گزر تو جائے گا نہیں، آتے ہوں گے خیر سے میاں ممتاز احمد۔ چچی آپ جیسا دل میں کہاں سے لاؤں، میرا تو کلیجہ منہ کو آیا جاتا ہے، نہ تو محسن کا کچھ پتہ چلتا ہے نہ ڈپٹی صاحب کا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے دلہن، ہمارا دل بھی پتھر کا نہیں ہے، اب تمہاری پریشانی کو دیکھ کر ہم اپنا دل مضبوط نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ چچی، آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا، میری حالت تو ویسے ہی دگرگوں ہو رہی ہے۔ بنیادی خالہ پہلے آپ جاؤ۔ آپ مجھے ساتھ لے کے چلیں گی؟ میرا مطلب ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے چچی جان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہمارا ذرا سننا تو، یہ بنیادی کا سر کہاں سے سنائی دیا؟ بنیادی جاؤ نا بنیادی خالہ پہ جاؤ۔ ہاں وہی ہے۔ اچھا جاؤ۔ سلام بیوی۔ سلام۔ غضب خدا کا، شہر کا یہ عالم، اور تمہیں جوڑا بدلنے کی اتنی جلدی کہ وقت دیکھا نہ گھڑی حسنہ کو لے کر پھر آ گئی۔ حسنہ؟ جی امی آداب۔ کل رات تو بیٹی تم سسرال گئی تھی اور آج پھر واپس، اور اس بلبے میں؟ ہم تمہاری ماں سے ابھی یہی کہہ رہے تھے کہ علی کو گھر داماد رکھ لو، وہ تم سے الگ اور تم ان سے دور نہیں رہ سکتی، نصیرہ کے بھاگوں بھی چھینکا ٹوٹے گا۔ دیکھو بیٹی، تمہاری شادی کو ابھی صرف 1 مہینہ ہوا ہے، اس میں تم نے 20 دن میکے میں کاٹ دیے۔ کہ چچی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، نصیرہ تمہارا گھر آباد ہونے نہیں دے گی۔ اماں آپ لوگ خواہ مخواہ نصیر آپا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان سے زیادہ بدنصیب عورت تو میں نے دیکھی نہیں۔ اماں آغا جی ہیں گھر پہ؟ یہ دیکھو کیسے گندے تعویذ بول رہے ہیں۔ نصیرہ کی ماں جو بش کا بیج بو کے اللہ کو پیاری ہوئی ہے، بیٹی وہ فصل کاٹے گی نہیں؟ تمہاری ماں کو ساری عمر دیورانی بن کے جلایا ہے نصیرہ کی ماں نے، پھر نصیرہ تمہاری بہی خواہ کیسے بن جائیں گی؟ چچی جان آپ چپ رہے، آپ کچھ نہ بولے۔ کیوں نہیں بولے؟ ضرور بولیں گی چچی جان۔ کیا بہرا، اندھا، گونگا، کیا یہ سب سمجھ لیا ہے نصیرہ نے؟ ارے جو اشفاق احمد نصیرہ کو نہ سمجھے وہ بھلا خدائی میں اور کیا سمجھے گا؟ عالم آرا یہ تماشا دیکھو، ارے 4 دن کی بیاہی کیسی نصیرہ کے گن گانے لگی حسنہ، سب بھول گئی کہ ساچک کے دن کیا کہا تھا نصیرہ نے، رخصتی اور ولیمے پر کس نے گل کھلائے تھے۔ کیا کہا تھا انہوں نے، کیا کیا تھا انہوں نے ساچک کے دن؟ چچی جان بات تو آپ نے خود شروع کی تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ ارے یہ کہا تھا کہ اس دن سے جو منہ کھولا ہے تو گھمیاں نکلی نہیں ہے منہ سے۔ عالم آرا یہ حسنہ تو گئی کام سے، اب تو یہ میرے اور تمہارے خلاف ہی بولیں گی۔ چچی جان اگر آپ اپنی بات ختم کر چکی ہوں تو میں کچھ کہوں؟ یہ دیکھیں بیوی، یہ شگوفے کھل رہے ہیں ماں، میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ حسنہ بیوی گھر کیسے کریں گی۔ رجیم اللہ پناہ میں رکھے۔ ارے یہ کہاں سے نکلا؟ بنیادی خالہ میں نے آپ کو منع کیا تھا میں نے منع؟ یہ ہم نمک حرام ہے۔ توبہ 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 توبہ،
मेरा मतलब है नमकवार है, 4 पुश्तों से नमक खा रहे हैं। ना बीवी ना, नमक हरामी हमारा मिजाज नहीं है। चची जान इधर तो ये हाल हैगा हुस्ना बीबी की ससुराल में कि अशफाक मियाँ बगैर फूके न खाना खाए न पानी पिए, दरो दीवार पे ताबीज लटक रहे हैं, शाख शाख पे कील जड़े हैं। ये उलझावा आज सुबह मैंने हुस्ना बीबी के बिस्तर से निकाला। ये हुस्ना इधर आके बैठो। आज के बाद से तुम नसीरा की तरफदारी नहीं करोगी। अम्मा, नसीरा अब बिल्कुल बेबस है। बेबस है? अरे फलीते जला जला के दूसरों को बेबस कर सकती है। अगर आप लोग अली के खानदान से इतनी नफरत थी तो आप लोगों ने मेरी शादी वहां क्यों की थी? हाँ, ये सवाल तो आज मैं तुम्हारे बाप से जरूर करूंगी। ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आई कि नसीरा तुम्हारी चचाजाद बहन तो बन सकती है, तुम्हारी नन नहीं बन सकती। अरे कौन है जो अली के घर से रोज उठा उठा के तुम्हें भेजता है यहाँ? हमसे पूछो, हमसे। नसीरा की नजर घर पर है। आला मारा, अगर यही गंडे ताबीज चलते रहे तो हुस्ना घर नहीं कर सकेगी। अबू नाजी, आज तुम तो घुटने चलने के काबिल हो गई। ये पलीतों का झुंझुना बना के क्यों मेरे मुंह के पर लटका रही हो? अरे रखो से कोने में दबा के मोरी के पास। अच्छा जी, शामी को ले जाती हूँ हजरत साहब के पास। ये हुस्ना तुम्हारा रोना मुझे बता रहा है कि दाल में काला है कुछ। मुझे साफ से फितना बता दीजिए। आगा जी हैं घर पे? चाची 2-3 दिन से उनकी हालत भी देखी, अब अपने किए पे पछता रहे हैं। अरे गजब खुदा का, उसने घर से धक्के देके तुम्हें सड़क पर इस बल्बे में निकाल दिया और तुम अभी तक उसी के गुण गा रही हो। आज तो मैं डिप्टी साहब से साफ साफ बात करूंगी। मोहसिन, अली, तुम दोनों मेरे कमरे में चलो। जी अच्छा। अच्छा भाई मिर्जा, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम भी घर जाकर भाभी से बता दो, मैं भी जरा अंदर देख लेता हूँ। हाँ हाँ जरूर जाइए, लेकिन डिप्टी साहब अपने हवासों पर काबू रखिएगा, कहीं अपनी बातों से भाभी को घबरा मत दीजिएगा। अच्छा अच्छा। अम्मा, आगा जी। हाँ शुक्र। डिप्टी साहब आप कहाँ चले गए थे? आज जरा तशरीफ लाइए इधर। खैरियत? पान बाद में खाइएगा, जल्दी आइए। इलाही खैर। फरमाइए। तशरीफ रखिए। हमारे खानदान के कितने बुजुर्गों को सूलियां दी गई थी आला मारा? ये कैसा सवाल है? गिनती तो याद होगी। गिनती तो दिल पे नक्श है। बड़े चौक पर 8 सूलियां टांगी गई थी। लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं डिप्टी साहब? गदर के बाद हम जैसे बहुत से मुसलमानों ने मुल्क की सियासत के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था, मगर आज अनजानेपन में वक्त हमें फिर एक बार उसी रास्ते पर ले आया है। अली और मोहसिन हिंदुस्तान से बाहर न भेजे जा सके तो खुदा न करे कल इन्हें काले पानी की सजा भी सुनाई जा सकती है। क्या क्या कह रहे हैं डिप्टी साहब? बड़े आप जी सही करें ताहिमा। मुझ पर कॉलेज के लड़कों को बगावत पर उकसाने और मोहसिन पर जुलूस की लीडरी का इल्जाम है। एक टॉमी हिंदू इंस्पेक्टर की गोली से मार दिया गया, उसके कातिल हम दोनों ही ठहराए गए। काला मुंह गोरों का ये दोनों कातिल? मुझे हरगिज यकीन नहीं आ सकता डिप्टी साहब कि शहर में इतना देर मचा हुआ। मेरा राय बहादुर और मिर्जा का यही मशवरा है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर मोहसिन और अली को हिंदुस्तान से बाहर चला जाना चाहिए। मोहसिन के बारे में आपको और मोहसिन के ख्याल बड़ा आका जी, मगर मैं बस दोनों की तरह हिंदुस्तान छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अली भाई प्लीज, जेंकिंस की हुकूमत को हमारे खिलाफ गवाहियां हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और फिर क्या रखा है इस मुल्क में? मैं तो न जाने कब से बाहर जाने के ख्वाब देख रहा हूँ। मैं जो ख्वाब देख रहा हूँ मोहसिन, उसकी ताबीर पाकिस्तान की तामीर और हमारी आज़ादी है। और फरार हासिल करने के लिए तर्क वतनी क्या जरूरी है? आदमी चाहे तो अपनी जगह बैठे बैठे भी हर जिम्मेदारी से फरार हासिल कर सकता है। पर अब ये तय है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अली, क्या अपने तायबा की बात भी नहीं मानोगे तुम? मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूं अली,
तुम इस्लाम या मुसलमानों की कोई बड़ी खिदमत अंजाम देकर काले पानी जाओ या शहीद हो जाओ, वल्लाह मुझे जर्रा बराबर परवाह नहीं होगी, मगर मैं तुम्हें अंग्रेज की मौजूदा हुकूमत की घिनौनी साजिश का शिकार नहीं होने दूंगा। राय बहादुर साहब उस मीटिंग में मौजूद थे जहां हिंदुस्तान के मुसलमानों को दहशत ज़दा करने के लिए तुम दोनों के लिए काले पानी की सजा तजवीज की जा रही थी। अली भाई, जो कसूर हमने किया है वो मुसलमान हिंदुस्तान के तूल अर्ज में कर रहे हैं, लेकिन लाहौर के नौजवानों को यह सजा देकर वो वाकई मुसलमानों को दहशत ज़दा करना चाहते हैं। नहीं मोहसिन, तुम गलत समझ रहे हो। हमारा कसूर छोटा सही, लेकिन हमारी सजा इतनी मामूली बात नहीं होगी। वैसे भी मोहसिन, जद्दोजहद आज़ादी में अफराद की कुर्बानियां जो होती हैं ना, वो आज़ादी के कारवान का संगमील बन जाती हैं। ये दहशत ज़दा करना भी चाहे तो अब मुसलमान डरेंगे नहीं। अब समझ में आई है बात कि बावजूद मना करने के हुस्ना मेरे घर आज क्यों भेजी गई थी। अली, अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो 1 महीना पहले शादी करने की क्या जरूरत थी। ये क्या तुम बेमहल गुफ्तगू करने बैठ गई? मौका महल तो अब समझ में आया है मेरी। घर में हुस्ना का टिकना किसी और ने दूभर बना दिया है, उसकी जिंदगी को दूभर बनाने ये चले हैं। सोच समझ कर बात किया करो। किसकी बात कर रही हो? बहुत सोच समझ कर जबान से ये बात निकाली है डिप्टी साहब। किसकी बात कर रही हूँ सुनेंगे? इनकी बहन नसीरा की और अपनी बेटी की। आप समझ नहीं सकती तो अंदर तशरीफ ले जाइए। उठी जाती हूँ, लेकिन जाते वक्त जरूर कह जाऊंगी कि मैंने अपनी फूल सी बच्ची इन्हें दी। अगर इन्हें लीडरी करने का शौक था तो हुस्ना मेरे घर बैठी क्या बुरी थी। कौन कह सकता है कि ये वही मोहतरम खानदान है जिसके 8 बुजुर्ग 1857 की जंग आजादी में सूलियों पर चढ़ाए गए थे। हमारा हाल देखकर तो यह महसूस होता है जैसे हमें अंग्रेज की गुलामी रास आ गई है। बना बनाया झक्की नमूना है अपने मरहूम बाप शमशाद अली का। तर्क मवालात में कैसा कैसा मेरा रेशम चलाया है शमशाद अली ने। हाय हाय, उसी बाप का तो बेटा है। आप खामोश नहीं रह सकती हमारा? नहीं रह सकती। आपने सारी जिंदगी अपनी औलाद से बढ़कर अपने भाई की औलाद से मोहब्बत की है। अली की जुर्रत कैसी हुई कि आपका हुक्म सुनकर भी कह जाते नहीं जाऊंगा हिंदुस्तान से। लगा मुझ पर तो मेरी बेटी भाई नहीं। जी मैं जाऊंगा वहां। तुम्हारी माँ अली और नसीरा से वाकई नफरत करती है। मुसलमानों के औसत दर्जे के कुनबों के सवाल का बड़ा सबब औरतों की कम इल्मी और खानदान की घटिया सियासत है। तुमने महसूस किया मोहसिन? इन्हें अली से इस लहजे में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। आगा जी, मैं तो कुनबे बिरादरी से वैसे ही दूर भागता हूँ। अली भाई जाएं या ना जाएं, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। आगा जी, वो अली और मोहसिन की रवानगी का बंदोबस्त हो गया है। ये दोनों यहां से राय बहादुर की कार में दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से चौधरी के भाई के साथ बंबई चले जाएंगे। चौधरी मुख्तारुद्दीन का पता किया? वो कहाँ है? जी वो फिलहाल तो नाइजीरिया में है, लेकिन अली और मोहसिन जब जद्दा पहुंच जाएंगे तो वो वहां मौजूद होंगे। मोहसिन, तुम जरा मेरी बात सुनो। जी आगा जी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। पैसों का बंदोबस्त मैंने कर लिया है। क्या मैं हाजिर हो सकता हूं? आधा वर्ष ताया साहब, आधा वर्ष डिप्टी कमिश्नर साहब। देखा तुमने, ये क्या हो गया? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अच्छा हुआ तुम आ गए। अली जाने को तैयार नहीं है। तो काले पानी ही जाएंगे क्या? खुदा ना करे। वैसे माशाल्लाह परेशानी के आलम में भी आपके तकल्लुफात कुछ कम नहीं हुए। आदत है, और वो भी उम्र भर की आदत। वैसे हैं कहाँ साहबजादे?
सकता, नहीं हो सकता है। मैं इस कमीने गवर्नर जेंकिन और उसके पिट्ठू से माफी किस तरह? बोलो। अली, उस्मान, तुम्हारे ये आंसू मुझे बुज़दिल बना सकते हैं, बेज़मीन नहीं हो सकता हूं मैं। कह दो हुस्ना, कह दो, जो कुछ कहना चाहती हो कह दो। तो खुदा के वास्ते ये मत कहना कि दुश्मनों के सामने मैं हाथ बांध के खड़ा हो जाऊं। और जो कुछ कहना चाहती हो कह डालो, निकालो दिल की भड़ास। अब हम दो नहीं हैं, एक तीसरा नाम भी हमारे वजूद का हिस्सा बन चुका है। आप सुन रहे हैं ना? आप सुन रहे हैं ना? हाँ, उसने, मैं सुन रहा हूं, मैं जानता हूं। किसी तीसरे नाम और इसी तीसरे वजूद ने तो मुझे जिंदगी का हौसला दिया है। फिर लोग ये क्यों नहीं समझते उसने? मैं होश हवास रखते हुए कैसे चाह सकता हूं कि मेरा बच्चा ऐसे हिंदुस्तान में आग खुले जहां किसी मुसलमान बच्चे का मुस्तकबिल महफूज नहीं है, जहां मुसलमानों के हंसते हुए चेहरे और अस्ती बस्ती आबादियों के बजाय उनके पाक जिस्म से बहने वाला लहू हिंदुस्तान में उनकी जिंदगी की अलामत बनेगा है। लेकिन लोग तो कहते हैं अली कि आप नेशनलिस्ट हैं। उस दिन आप कांग्रेसी लीडरों के इस्तकबाल को भी रेलवे स्टेशन गए। हाँ, अच्छा मारी थी मैं। तुमको निजात दहिंदा समझकर स्टेशन पर उनके इस्तकबाल को गया था। जानती हूं, इन निजात दहिंदों में से किसी एक ने एक लफ्ज एहतजाज का नहीं कहा इस जलील हुकूमत के खिलाफ। मुझे क्या रकत का सवाब मिल जाता, क्या रकत का सवाब मिल जाता जो मैं नेशनलिस्ट ही रह जाता। सजा से बच भी जाता तो तुम्हारे ख्याल में नेशनलिस्ट और कांग्रेसी मुसलमानों का अशर मेरे सामने नहीं है? अभी कल की तो बात है ना, सनों के मेले में तलवा हुआ था तो वो इलाहाबाद कांग्रेस के मुसलमान सदर, उनकी वो गांधी कैप, उनकी वो खद्दर की शेरवानी, वो तक तो इनको बचा ना सके। उनके घर का सन और बच्चा तक मार दिया गया। हमें हिंदुस्तान में अगर जिंदा रहना है तो एक बाइज्जत और खयूर कौम की तरह जिंदा रहना होगा। लेकिन बाखुदा अब ये रुसवाई, जिल्लत मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मेरी जिंदगी में एक मकसद है उसका, और मैं उसी के लिए जिंदा हूं। आप चले जाइए। हाँ अली, आप चले जाइए। अली मियां। जी आजरगा शौक भाई। अब भी वक्त है, सोच लो उसका। आप चले जाइए। हाँ, मुझे मालूम हो गया है अली। आबिद हसन और एहसन के सामने तो हमारी चलने से रही। कम से कम हमारा मशवरा तो ये था कि तुम चले जाते हो रियासत हैदराबाद दक्कन, वहां अपनी भी नवाबीन सेलेक्ट थी, अंग्रेज से भी खासा पुराना जाराना था,
कुछ ना कुछ बात बन ही जाती, मगर अब वो लोग भेज रहे हैं तुम्हें अफ्रीका, और अफ्रीका काले पानी से दूर है। आपने आपा को कुछ बताया तो नहीं? अरे तुम्हारी बहन ही का पैगाम पहुंचाने के लिए मैं इस वक्त तुम्हारे पास आया हूं। अशफाक भाई, आप तो कमाल कर रहे हैं। मैं समझता था कि आप मुझसे नफरत करते होंगे। नफरत? हाँ, नफरत ही कह लो अली। सारा जमाना यही कहता है कि मैं अपनी बीवी और साले दोनों का दुश्मन हूं। मैं भी कहने वालों को छुटलाता नहीं, बस खामोश रहता हूं, चुप। मुझे माफ कर दीजिए अशफाक भाई, प्लीज। मैं क्या करूं? जब बाबा की बातें सुनता हूं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। ये क्या है? स्टैम्प पेपर? वो माने ही नहीं तुम्हारी बहन। मैं यहां आने को तड़प रहा था और वो मुझे भेज रही थी अदालत। खड़ा खड़ी अदालत से ये पेपर बनवा के ला रहा हूं। तुम्हारे पीछे मकान की मुसीबत हो जाएगी, इसका महफूज हो जाना जरूरी है। अशफाक भाई, ये स्टैम्प पेपर गालिबन मेरी और हुस्ना की मंगनी के वक्त ही तैयार हो गया था। समझते जरा गौर कीजिए आप। वो बलवे की वजह से आज तमाम अदालतें मअतल पड़ी हैं। पिछली तारीख न डलवाता तो और क्या करता। अशफाक भाई, आपको किसने कहा है कि मैं जा रहा हूं? किसने कहा है? जाना तो तुम्हें होगा अली। जुमला पूरा कर दीजिए अशफाक भाई। जाना तो तुमको होगा अली, अफ्रीका ना सही, काले पानी सही। आपको पता है मैं इस वक्त क्या समझ रहा था? मैं समझा था कि आप आपा की पता नहीं कितनी दुआओं का संदेश इस वक्त मेरे पास लेकर आए होंगे। अशफाक भाई, मेरे ससुराल वाले आपको, मुझे या आपा को कितना ही बुरा कहना समझे, लेकिन एक बात याद रखिए कि वो नियत के इतने बुरे नहीं है कि मेरी इस छोटी सी जायदाद पर मेरी गैर हाजिरी में उनकी नजर। समझे आप? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। चले जाइए। हुस्ना बीबी, छोटी बीबी, काहे रो रही हो? हम तो ये कहे हैं बीबी कि ये जो बड़े सरकार अली मियाँ को बाहर भिजा रहे हैं ना, ये कोई भली बात नहीं। क्या करे ढीलू दादा, इसके सिवा कुछ हो भी तो नहीं सकता। शाही तो बीबी अकबर बादशाह की नहीं रही, तो एक गोरा और कितने दिन शाही कर लेगा। छोटे बड़े सभी बोल बता रहे कि पाकिस्तान मौला ने चाहा तो जरूर बनेगा, पर ये जो अली मियां परदेश चले गए ना, तो देश परदेश के दो दुनियाओं बीच बड़ी खंडतें हैं। पहले तो देश से बाहर जाना मुश्किल, खामखा कोई बला लग जाए, देश छूटे बंदा परदेश चला जाए तो परदेश से लौटना भी बस में नहीं रहता। ना 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 रो, ना रो छोटी बीबी, ना
पर जो ये अलीमिया परदेश चले गए ना, तो देश परदेश के दो दुनियाओं बीच बड़ी खंडतें हैं। पहले तो देश से बाहर जाना मुश्किल, खामोखा कोई बला लग जाए, देश छूटे बंदा परदेश चला जाए तो परदेश से लौटना भी बस में नहीं रहता। नहीं छोड़ेंगे, वो तो मैं नहीं छोड़ेंगे अली। हुस्ना, क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो? हैं? अली, आप चले जाइए, अब चले जाइए। तुमने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं समझा। मैं कुछ सुनना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, बस आप चले जाइए, चले जाइए। बहुत कुछ खो रही हो हुस्ना, बहुत कुछ खो रही हो। अगर सिर्फ और सिर्फ तुम अगर ये ना चाहती तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत मुझे यहां से जाने पर मजबूर नहीं कर सकती। आपकी तो एक मजबूरी और मेरी 1000 मजबूरी, 1000 मजबूरी। जानती हूँ अफ्रीका काले पानी से बहुत ज्यादा दूर है। अगर तुम्हारी लिए खुशी है तो यही से। एक बात याद रखना हुस्ना, मैं एक दफा अगर यहां से चला गया तो दोबारा इस गुलाम मुल्क में लौट कर नहीं आऊंगा। फिर भी आप चले जाइए, चले जाइए। हाय हाय, वही ना आए अली रजा, शायद से फर्रुख को 5वां बरस लग गया। क्यों नहीं आएंगे अली, खैर से जरूर आएंगे। ले जाओ, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? बीवी, तुम तो अपने बच्चों को अलग थलग लेके मगन बैठी रहती हो। तुम्हें क्या खबर मेरे दिल पे क्या बीत रही है? मेरे दिल की तकलीफ को तो सिवाय चाची की कोई और नहीं समझ सकता। माँ, बिला वजह की परेशानी का तो कोई इलाज नहीं है। अली खत भेजते हैं, अभी 2 दिन में बीवी बच्चे के लिए सामान भेजा, और कोई क्या कर सकता है? आप लोग तो नाहक राय का पहाड़ बना देते हैं। दिल में वहम तो आता है रोशन, कहीं निकाह विकाह तो नहीं कर लिया उन्होंने? जिसने निकाह करना हो वो इस शहर में बैठ के भी कर सकता है। आप लोगों से कौन बैसे, लेकिन खुदा के लिए खामोश रहिएगा। हुस्ना के सामने ऐसी बातें मत कीजिएगा। आइए शौकत भाई। फर्रुख, अरे फर्रुख, बागी आओगे तुम? फर्रुख, फर्रुख, बेटे अभी तुम भागे। पहले हम पहले देखो फरूक बेटे की बिस्मिल्लाह हो रही है, ठीक है? फरूक बेटा पहले पढ़ेगा, उसके बाद खेले।
और मम्मा जोर से खेलने में दिल कर रहा है। मेरा दिल भी कर रहा है जोर से। नहीं, पर्दों के कान खींचकर लंबे करने को। बेटा पहले पढ़ लो, उसके बाद खेलते रहना, ठीक है? अच्छा ठीक है। जूती उतार और बिस्मिल्लाह हो रही। लीजिए काजी साहब, ये है फर्रुख मियां। यकीन कीजिए मिर्जा साहब के। अरे भाई मिर्जा इधर ही आ जाइए। अरे भाई किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं निफ्टी साहब, मैं जरा अशफाक मियां से इन्हें तकसीम से पहले के इनके कारनामे सुन रहा हूँ। बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं इन्होंने। आधा वर्ष है। आप कब आए? अच्छा, मैं आपको नजर तो आ गया, मैं तो काफी देर से यहाँ खड़ा। बात ये डिप्टी कमिश्नर साहब की अंग्रेज के बाद में सिर्फ आप जैसे अफसरों की इज्जत करता हूँ। ये बिस्मिल्लाह के अरेंजमेंट्स आपको पसंद आए? कोई एतराज तो नहीं आपको? आप इंतजामात करें Excuse और me. अच्छे ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो बेटे। लड्डू तो है नहीं इतने बड़े। हुस्ना, लड्डू लड्डू रहेंगे तो बिस्मिल्लाह होती नहीं है ना मौलवी साहब। बुनियादी खाला लड्डू आ गए कि नहीं? बीबी बक्का कोई काम सीधा नहीं करने का। बीबी लड्डुओं के साथ बताशे रख के लिया, लड्डू भी टूट गए, बताशे पसीज गए। खुदा के वास्ते बुनियादी आपा, तू मेरे हाथ पाँव नहीं फुलाया कर। लड्डू मैं कोई आप ही बना रहा था, वो तो हलवाई ने खुद रखे। अरे चल निगोड़ मारा। अरे 100 बरस भी तू सुगड़ावे की हंडिया चाटेगा तब भी अच्छों के घर का निवाला तोड़ना ना सीखेगा। सारे तो लड्डू टूट गए। लड्डू तो नहीं टूटे अब देखो। अरे नहीं नजीस हाथ को मत लगा। खुदा के वास्ते शुगुन के समय नजीस पाक न किया कर। अपने बराबर सबको मुसलमान समझो। बाप को लड़ने ला, पहले मुझे लड्डू दे दो। चलो उधर रखो दो। चलो ना पहले मुझे रखने दे। हाँ पहले मुझे रखो। काम तो करता नहीं है और बाद में ये जो सच्चे मोतियों की लड़ियां हुस्ना ने पहन रखी हैं, कहाँ से आई? ये तो मेरे अली ने भेजी है। घर का कागज नहीं भेजा अली ने? कागज देखो ना, तुम्हारे सामने हुस्ना ने खत लिखा था और तुम खुद ही तो बक्से में डाल के आए थे। अब अगर जवाब नहीं आया तो इसमें हुस्ना का तो कोई भी दोष नहीं है ना। हाँ, अली को मुझसे नफरत है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। उसकी बहन यगमाल के तौर पर न जाने और कितने दिनों रह सकती है। ये शीरीनी क्या तकसीम हो रही है? शीरीनी, हमारे यहाँ फजूल रस्मों पे पैसे खर्च नहीं किए जाते, बस बताशे बांटते हैं। हमारे यहाँ बताशे बट रहे हैं। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खूना निकला। यानी 20 रुपए की चीनी और बताशों पे सारा कुंबा निपटा दिया। हुमो के अब्बा, ये तो सब अपनी अपनी मर्जी की बात होती है ना। जब हमारी हुमो की बिस्मिल्लाह होगी तो तुम अपने दिल के सबरमान निकाल लेना। बच्चे का बाप 4.5 बरस से बाहर है, इतनी खुशी कुछ अच्छी नहीं लग रही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मौलवी साहब ने बिल्कुल ठीक वक्त पर औज़ु बिल्लाह पढ़ी है। शैतान तो करीब ही खड़ा है। शाबाश। अब बोलो इक़रा बिस्मे, बोलो। पढ़ो बेटे, इक़रा बिस्मे। ये नहीं बोलूंगा बड़ा मम्मा। तुम यही पढ़ोगे तो बिस्मिल्लाह होगी। ये मुझे आदत, मैं अब्बू के सामने पढ़ूंगा। फरूक बेटे, चांद पढ़ो पढ़ो बेटे, पढ़ो। मैं सब पे कर ये सारा में ना रख। ये मुझे आदत, मैं नहीं पढ़ूंगा। अपना बोला अब तुम अब्बू की गोद में बैठ कर पढ़ना। बस करो, बस करो, मेरे पर रहम करो। तुम्हारे अब्बू अब कभी नहीं आएंगे। हमारी हर खुशी आंसू की नजर हो जाएगी।